Good morning students. Welcome back to second part of my video lecture of the lesson The Bear Story written by Axel Munt. In this video, we will discuss the story in detail and during the session, we will also try to grasp the meaning of difficult words given in the story. Alright, now let's start. The lady in the manor house had a bear as pet. Pet, domestic, paltu, and manor house means the mansion of a lord or wealthy person, बड़ा भवन, कोठी या हवेली. Another meaning, farmhouse, a big house built with stones. The lady in the manor house had a bear as a pet. हवेली में रहने वाली महिला के पास एक पालतू बियर रिच भालू था. इट वॉज द मोस्ट फ्रेंडली बेयर और यह बहुत ही मैत्रीपूर्ण बेयर था, बहुत ही मित्रवत फ्रेंडली बेयर था. हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी, जो वेजिटेबल्स, एप्पल्स और हनी को पसंद करता था. ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट. वह दिन भर फ्रीली स्वतंत्र रूप से घूमता रहता था. बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट, पर रात को उसे जंजीर से बांध दिया जाता था. देयर वॉज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट. एक समय एक महिला विशाल जंगल के किनारे बनी हवेली में रहा करती थी. देयर वॉज वंस अ लेडी who lived in an old manor house on the border of a big forest. Border, is EDGE, kinara. This lady had a pet bear she was very fond of. उस महिला का एक पेट बेयर था, पालतू रिच या पालतू भालू था जो उसे बहुत प्रिय था. It had been found in the forest, half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. It had been found in the forest. इस रिच को उस लेडी ने जंगल में पाया था. हाफ डेड ऑफ हंगर, वह भूख से अधमरा था. सो स्मॉल एंड हेल्पलेस, और इतना छोटा और असहाय था that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook, कि मालकिन और ओल्ड कुक, बूढ़ी रसोइया ने उसे बोतल से दूध पिलाकर पाला. That it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. This was several years ago. Several, many. This was several years ago, and now it had grown up to a big bear, so big and strong that he could have slain, means killed, a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. This was several years ago. यह घटना वर्षों पुरानी थी. And now it had grown up to a big bear. अब तो वह पूरा विशाल रिच बन गया था. So big and strong, इतना बड़ा और शक्तिशाली, that he could have slain a cow, कि वह चाहता तो गाय को मारकर. He could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. वह इतना शक्तिशाली और विशाल हो गया था, बड़ा हो गया था, कि वह चाहता तो गाय को मारकर उसे अपने दोनों पंजों के बीच उठाकर ले जा सकता था. But he did not want to. He was most amiable bear who did not dream of harming anybody, man or beast.
but he did not want to, पर वह ऐसा करना नहीं चाहता था. He was a most amiable bear. Amiable, friendly, मित्रवत. He was a most amiable bear. वह बहुत ही मैत्रीपूर्ण बेयर था, भालू था. Who did not dream of harming anybody. जो किसी को चोट पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता था. मैन और बिस्ट, चाहे मैन हो, पुरुष हो, या बिस्ट, जंगली जानवर, पशु. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. He used to sit outside his kennel. Kennel, a small house for dog. A small house for a dog is known as kennel. And look with his small intelligent eyes most amicably in a friendly way at the cattle grazing in the field. Grazing, eating grass. In the field nearby, पास के जो नियर बाय फील्ड हुआ करते थे, खेत हुआ करते थे, उसमें जो कैटल, मवेशी घास चर रहे होते, उनको वह देखा करता था अपने स्मॉल इंटेलिजेंट आइज से, किस तरह से, एमिकेबली, इन अ फ्रेंडली वे. वह अपने घर के आगे बैठा रहता तथा निकटवर्ती खेतों में चरते पशुओं को छोटी समझदार आंखों से, स्मॉल इंटेलिजेंट आइज से देखता रहता था. द 3 shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. The 3 shaggy, hairy, बड़े रोएदार, HAIRY, mountain ponies means small horses, छोटे घोड़े, in the stable is a building where horses are kept. अस्तबल, जहाँ पर horses को रखा जाता है. A building where horses are kept. The 3 shaggy mountain ponies in the stable. अस्तबल के जो 3 shaggy mountain ponies थे, 3 बड़े रोएदार पर्वतीय घोड़े, knew him well, वो उस रिच को, उस भालू को अच्छी तरह से जानते थे. And did not mind in the least when he shuffled, means walked, WALKED, walked into the stable with his mistress. और जब रिच भालू उनके अस्तबल में मालकिन के साथ आता तो उन घोड़ों को कोई डर नहीं लगता था. The children used to ride on his back, और बच्चे भी उसकी पीठ पर सवारी करते थे. And had more than once been found asleep in his kennel between his 2 paws. और कई बार तो वे रिच के घर में उसके दोनों पंजों के बीच सोते हुए पाए गए थे. The 3 dogs loved to play all sorts of games with him. जो 3 कुत्ते थे, डॉग्स थे, 3 dogs, वो भी उस भालू के साथ, रिच के साथ अनेक प्रकार के खिलवाड़ करते रहते थे. Pull his ears and his stump of a tail and tease him in every way. Pull his ears, उसके कान खींचते, and his stump of a tail. Stump, the part that is left after something has been cut down or broken off, etc. Stump of a tail and tease him in every way.
उसकी छोटी पूंछ को खींचते और उसे हर तरह से टीज, ट्रबल, तंग करते, उसे परेशान करते रहते। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लिस्ट, लेकिन जरा भी उस रिच को, भालू को बुरा नहीं लगता था। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लिस्ट, पर रिच कभी तनिक भी बुरा नहीं मानता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी गोश्त नहीं खाया था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स, वह वही कुछ खाता था जो डॉग्स खाते थे। एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, ब्रेड, रोटी, पोरिस, लिक्विड फूड, दलिया जिसे कहते हैं, पोटैटो, आलू, कैबिस मीन्स कल्टिवेटेड प्लांट विथ ब्रॉड ग्रीन लीव्स, पत्ता गोभी, एंड टर्निप, a round root which is eaten as vegetable, in हिंदी शलगम। वह वही खाता था जो डॉग्स खाते थे और प्रायः उसी प्लेट में, जैसे कि ब्रेड, रोटी, पोरिस, दलिया, पोटैटो, आलू, कैबेज, पत्ता गोभी, एंड टर्निप, शलगम। He had a fine appetite. Appetite, हंगर, भूख। उसकी जो खुराक थी वो भी अच्छी थी। And his friend the cook saw to it that he got his fill. Here fill means eat until you are satisfied, भरपेट खाना। और उसकी मित्र रसोइया ध्यान रखती थी कि भालू को, रिच को भरपेट खाना मिल जाए। Bears are vegetarians. Vegetarians, one who does not eat meat, जो मीट नहीं खाता उसे क्या कहते हैं? वेजिटेरियन, शाकाहारी। Bears are vegetarians if they have a chance. जो रिच होते हैं वो शाकाहारी होते हैं यदि उन्हें अवसर मिले तो। एंड फ्रूट इज वॉट दे लाइक बेस्ट, और उन्हें सबसे अधिक प्रिय फल होते हैं फ्रूट। इन द ऑटम ही यूज्ड टू सिट एंड लुक विथ हिज विस्टफुल आइज एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द आर्चर्ड। आर्चर्ड, फ्रूट गार्डन को आर्चर्ड कहते हैं, बगीचा। एंड इन हिज यंग डेज he had been sometimes unable to resist. Resist means to check, CHECK, or control. The temptation means greed, GREED, प्रलोभन या लालच, to climb the tree and help himself to a handful of them. Okay. Bears are vegetarians if they have a chance, and fruit is what they like best. जो बेयर्स होते हैं वो शाकाहारी होते हैं यदि उन्हें अवसर मिले तो। एंड फ्रूट इज व्हाट दे लाइक बेस्ट, और सबसे ज़्यादा फ्रूट उन्हें पसंद होता है। इन द ऑटम ही यूज्ड टू सिट एंड लुक विथ हिज विस्टफुल आइज। ऑटम सीजन में, पतझड़ के दौरान, वह बैठकर अपनी विस्टफुल आइज से, अपनी ग्रीडी लालची आंखों से, राइपनिंग एप्पल्स, पकते हुए सेबों को देखता, इन द आर्चर्ड में, बगीचे में। एंड इन हिज यंग डेज, और जब वह छोटा था, यंग था, ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेसिस्ट, तो कभी कभी वह रेसिस्ट नहीं कर पाता था, कंट्रोल नहीं कर पाता था अपनी टेम्पटेशन को, अपने लालच को, लोभ को रोक नहीं पाता था। किस बात की लालच? टू क्लाइम द ट्री, पेड़ पर चढ़ने का लालच। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम, वह कभी कभी वृक्ष पर चढ़ने का लोभ रोक नहीं पाता था तथा कुछ सेब खा लेता था। समटाइम्स unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them.
Bears look clumsy and slow in their movements, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at that game. जो bears होते हैं वो clumsy होते हैं. Clumsy awkward, AWKWARD, अनाड़ी होते हैं, clumsy होते हैं, फूहड़ तरीके से मंद गति से चलते हैं, स्लो इन देयर मूवमेंट्स, बट ट्राई अ बेयर विथ एन एप्पल ट्री, पर सेब के वृक्ष पर तो किसी भी स्कूली बच्चे से तेज गति से चढ़ जाते हैं. बट ट्राई अ बेयर विथ एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन इजली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम. किसी भी स्कूल बॉय से भी वो ज़्यादा किसी पेड़ पर यदि उन्हें एप्पल खाना हो तो वे चढ़ जाते हैं. नाउ ही हैड लर्न्ड दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ. अब उस पेट बेयर को समझ में आ गया था कि ऐसा करना नियम के अगेंस्ट में है, नियम विरुद्ध है. बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एन एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड. पर वह अपनी छोटी आंखों से जमीन पर गिरने वाले सेबों पर नजर रखे रहता था. There had also been some difficulties about the beehives. Beehives, a box-like structure where bees are kept. मधुमक्खी का छत्ता. There had also been some difficulties about the beehives. और मधुमक्खी के छत्तों को लेकर भी परेशानी होती थी. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again. और इसके लिए उसे 2 दिनों तक जंजीर से बांधकर दंड स्वरूप रखा गया था. With a bleeding nose, bleeding, blood flowing, खून बहना. उसकी नाक पर चोट के कारण खून बह रहा था. एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन. और फिर उसने वैसी गलती नहीं की. अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइट रफली सो फॉर अ बेयर लाइक अ डॉग इज एप्ट मीन्स लाइकली संभावित टू गेट सम वॉट ill tempered means of bad mood, चिड़चिड़ा, if kept on the chain, and no wonder. Otherwise, अन्यथा, he was never put on the chain except for the night. अन्यथा वह केवल रात को ही जंजीर से बांधा जाता था. And quite rightly so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain and no wonder. और ऐसा करना उचित ही था क्योंकि भालू रिच भी डॉग्स की तरह चिढ़ जाता है यदि उसे जंजीर से बांधकर रखा जाता है. For a bear like a dog is likely to get somewhat ill-tempered if kept on the chain and no wonder. और ऐसा करना उचित ही था क्योंकि जो रिच होते हैं वो भी कुत्तों की भांति, डॉग्स की भांति चिढ़ जाते हैं यदि उन्हें जंजीर से बांध कर रखा जाता है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी. द लेडी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे, लीविंग द बेयर ऑन द चेन द होल आफ्टरनून. महिला हर रविवार को अपनी बहन से मिलने जाया करती थी. लिविंग द बेयर ऑन द चेन द होल आफ्टरनून. और वह रिच को जंजीर से बांधकर सारी दोपहर छोड़ जाती थी. वन संडे, एक रविवार को, संडे को, वाइल वॉकिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, डेंस थिक, घने जंगल से होकर जब वो गुजर रही थी, शी फाउंड हिम फॉलोइंग हर. तो उसने उस रिच को अपने पीछे आते देखा.
शी वॉज सो एंग्री विद द डिसोबीडियंट बेयर, उस अवज्ञाकारी रिच से इतनी नाराज हो गई, दैट शी हिट हिम ऑन द नोज विथ हर अम्ब्रेला, कि उसने उसकी नाक पर अपनी अम्ब्रेला से हिट कर दिया, वार कर दिया। बट द बेयर वॉज रियली फ्रेंडली, बट बेयर रिच भालू मित्रवत बना रहा। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary means lonely, एकमात्र house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. He was also put on the chain on Sundays. उसे रविवार को जंजीर से बांध कर रखा जाता था। When his mistress went to spend the afternoon, जब उसकी मालकिन अपनी मैरिड सिस्टर विवाहित बहन से मिलने जाती थी, who lived in a solitary lonely house on the other side of the mountain lake, जिसका एकमात्र घर पर्वतीय झील के उस पार था, अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, और वहाँ पहुँचने के लिए 1 घंटा घने जंगल से होकर जाना पड़ता था। इट वॉज नॉट सपोज्ड टू बी गुड फॉर हिम टू वॉन्डर अबाउट इन द फॉरेस्ट विथ ऑल इट्स टेम्पटेशंस, और रिच के लिए, उस भालू के लिए ठीक नहीं समझा जाता था कि वह जंगल में जहाँ इतने आकर्षण या प्रलोभन थे खाने पीने की चीज़ें, इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, उसे अकेला घूमते हुए उस जंगल में जाना अच्छा नहीं समझा जाता था। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, और सुरक्षा बरतना बेहतर था। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर, वह एक बैड सेलर भी था। सेलर नाविक। एंड ही हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड। फ्राइट फियर, भय, एंड गस्ट ऑफ विंड मीन्स अ सडन स्ट्रॉन्ग रश ऑफ विंड, हवा का झोंका। That he had upset the boat, and he and his mistress had to swim to the shore. वह एक बुरा नाविक भी था। एक बार तो गस्ट ऑफ विंड, हवा के झोंके से वह इतना डर गया कि नाव पलट गई और उसे अपने मालकिन के साथ तैरकर तट पर आना पड़ा था। And had once taken such a fear at a sudden gust of wind, at a sudden strong rush of wind, that he had upset the boat, and he and his mistress had to swim to the shore. Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays. और वह भली भांति जान गया कि उसकी मिस्ट्रेस उसे संडेस को, जब भी वो अपनी सिस्टर के पास मिलने जाती हैं, तो उसे क्यों जंजीर से बांध देती हैं। अब उसे भली भांति समझ में आ गया था कि रविवार को जंजीर से बांधे जाने के पीछे मालकिन की क्या मंशा थी। विथ अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड, टैप टू टच or hit somebody or something quickly and lightly, थपकी देना, on his head, मालकिन उसके हेड पर, उसके सिर पर थपकी देती थी। and the promise of an apple on her return, और वो उससे वादा करती थी कि जब वो वापस लौटेंगी तो उसे एक एप्पल देंगी खाने को।
ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस, यदि वो उनकी अनुपस्थिति में अच्छा बना रहेगा तो लौटने के बाद वह उसे एक एप्पल देंगी। यदि उसने कोई शैतानी नहीं किया तो उसके बदले में उसे एक एप्पल खाने को मिलेगा। ऐसा उसकी मिस्ट्रेस मालकिन उससे वादा करती थी। ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड। रिजाइंड हियर मीन्स एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लेता था। लाइक अ गुड डॉग, जब मालकिन मिस्ट्रेस उससे कहती, When his mistress tells him he cannot come with her for a walk, जब कभी उसकी मिस्ट्रेस बाहर जाती और उस बियर से, पेट बियर से ये कहती कि वह उनके साथ नहीं आ सकता, तो इस बात से वह सॉरी फील करता था, सैड फील करता था, उसे दुख होता था। बट रिजाइंड मीन्स ही एक्सेप्टेड, वह स्वीकार कर लेता था। लाइक अ गुड डॉग, एक अच्छे डॉग की तरह। One Sunday, when the lady had chained him up as usual means normally, पूर्ववत जैसा वो किया करती थी, एक रविवार को जब महिला ने उसे अन्य दिनों की भांति जंजीर से बांध दिया। One Sunday, when the lady had chained him up as usual normally and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. Winding, not straight, टेढ़ा मेढ़ा, जो सीधा न हो. And cracking means breaking noisily, जोर की आवाज़ में कोई चीज़ टूट रही हो, ऐसा मिस्ट्रेस को लगा, उस लेडी को लगा. One Sunday, when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, एक रविवार को जब महिला ने उसे अन्य दिनों की भांति जंजीर से बांध दिया और जंगल में आधी दूरी तक पहुंचने पर उसे अचानक लगा, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. तो उन्हें लगा कि पीछे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर, वाइंडिंग फुटपाथ पर, बिहाइंड हर, उनके पीछे, सूखी टहनियाँ टूट रही थी. क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांचेस ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर. आधी दूरी पर जंगल में पहुंचने पर उस लेडी को लगा, उन्हें अचानक ऐसा लगा कि पीछे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर सूखी टहनियाँ टूट रही हैं. शी लुक्ड बैक, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा. एंड वॉज हॉरिफाइड, हॉरिफाइड अफ्रेड, भयभीत, वो डर गई. उसने पीछे मुड़कर देखा और शी वॉज हॉरिफाइड टू सी द बेयर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड. और जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो बियर अपने पूरे वेग से, तीव्र गति से उनके पीछे आ रहा था. शी वॉज हॉरिफाइड टू सी द बेयर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड. बेयर्स लुक एज इफ दे मूव अलॉन्ग क्वाइट स्लोली. जो बेयर्स होते हैं देखने में तो मंद गति से चलते दिखते हैं, बट दे शफल अलॉन्ग मच फास्टर देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स. लेकिन वो शफल करते हैं, शफल मीन्स मूव, दौड़ते हैं, अलॉन्ग मच फास्टर देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स, पर वे किसी भी दौड़ते घोड़े से तेज दौड़ते हैं. बेयर्स लुक एज इफ दे मूव अलॉन्ग क्वाइट स्लोली. जो रिच होते हैं देखने में मंद गति से चलते दिखते हैं, बट दे शफल, दे मूव अलॉन्ग मच फास्टर देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स देन अ रनिंग हॉर्स. लेकिन किसी भी दौड़ते घोड़े से तेज दौड़ते हैं. इन अ मिनट ही हैड ज्वाइंड हर,
और 1 मिनट में वह रिच मालकिन के पास, मिस्ट्रेस के पास, उस महिला के पास आ गया। पैंटिंग मीन्स ब्रीदिंग हैवली, वह हाँफ रहा था। एंड स्नीफिंग मीन्स स्मेलिंग, जोर से सांस लेकर सूंघ रहा था। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, और हाँफते और सूंघते हुए वह यूजुअल प्लेस को प्राप्त करने के लिए। डॉग फैशन्ड मीन्स एज द डॉग डिड, जैसा कि डॉग्स करते थे। एट हर हिल्स, हिल्स फीट, एड़ी। और वह कुत्तों की भांति डॉग्स की तरह मालकिन की एड़ी के पास आ गया। इन अ मिनट ही हैड ज्वाइंड हर, पैंटिंग एंड स्निफिंग, टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, डॉग फैशन्ड एट हर हिल्स। और 1 मिनट में वह रिच पास आ गया, हाँफता और सूंघता हुआ वह कुत्तों की भांति मालकिन की एड़ी के पास आ गया। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, वह लेडी महिला बहुत नाराज थी। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, उसे वैसे ही लंच के लिए देरी हो चुकी थी। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और अब समय न था कि वह उसे वापस घर ले जाएं। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विथ हर, और वह नहीं चाहती थी कि वह उनके साथ जाए। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, इन एडिशन एंड बिसाइड, इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम, नॉटी मिस्चीवस, MISCHIEVOUS, इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसोबेड हर, इसके अलावा उसके आदेश का पालन न करना उसकी शैतानी थी। इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसोबेड हर। शी टोल्ड हिम इन हर सीवरेस्ट वॉइस, उसने अपने कठोरतम स्वर में उससे कहा। टू गो बैक एट वंस, कि वह तुरंत वापस चला जाए। मेनसिंग मीन्स थ्रेटनिंग, THREATENING, उसे डराते हुए, धमकाते हुए। विथ हर पैरासॉल मीन्स विथ हर अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला से, अपने छाता से उसे धमकाया भी, डराया भी, जिससे वह वापस चला जाए। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट, रिच एक क्षण को रुका। एंड लुक्ड एट हर, और उनकी तरफ देखा, उस लेडी की तरफ। विथ हिज कनिंग आइज, अपनी धूर्त आंखों से, कनिंग आइज से देखा। बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक, लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहता था। एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर। स्निफिंग मीन्स टू ब्रीथ एयर इन थ्रू द नोज इन अ वे दैट मेक्स अ साउंड। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, लेकिन वह वापस जाने को तैयार नहीं हुआ और वह अपनी सांसें फेंकता रहा। He kept on sniffing at her. When the lady saw that he had even lost his new collar, a band of leather that is put round an animal's neck, गले का पट्टा। When the lady saw that he had even lost his new collar, जब उस लेडी ने देखा कि रिच का नया कॉलर भी खो गया है, he had even lost his new collar, she got still more angry, तो वह और अधिक नाराज हो गई। and hit him on the nose with her parasol, और अपने छाते से, पैरासॉल से इतनी जोर से मारा। hit him on the nose with her parasol so hard that it broke into two, कि उनका छाता टूट गया, उनकी छतरी ही टूट गई। He stopped again, वह
पुनः रुक गया। shook his head, moved his head, उसने अपना सिर हिलाया। and opened his big mouth, और बड़े से मुंह को कई बार खोला। opened his big mouth several times, कई बार खोला। as if he wanted to say something, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। then he turned round, फिर वह मुड़ा। and began to shuffle back the way he had come, और जिधर से वह आया था उसी तरफ वापस चल दिया। stopping now and then, कभी कभी रुककर। to look at the lady till at last she lost sight of him. lost sight of means could not see, दृष्टि से ओझल। कभी कभी रुककर वह महिला की ओर देखता रहा जब तक कि वह दृष्टि से ओझल नहीं हो गई। stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. when the lady came home in the evening, जब महिला शाम को घर लौटी, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. तो उसने रिछ को, भालू को अपने नियत स्थान पर घर के सामने बैठा पाया। वह बहुत उदास दिख रहा था। He was looking very sad. The lady was still very angry. महिला अभी भी काफी नाराज थी। She went up to him. वह उसके पास गई। And began to scold him, rebuke him. उसे डांटने लगी। Most severely. Most severely means most strongly. कठोरता से उसे डांटने लगी। And said he would have to be chained for 2 more days. उसे कठोर शब्दों में फटकारने लगी और उस लेडी ने कहा कि तुम्हें 2 दिन और जंजीर से बांधकर रखा जाएगा। The old cook who loved the bear as if he had been her son rushed out from the kitchen very angry. Old cook रिच को, भालू को अपने बेटे की भांति प्यार करती थी। वह रसोई से अत्यधिक नाराज होकर बाहर आई। The old cook who loved the bear as if he had been her son rushed out from the kitchen very angry. What are you scolding him for, missus? said the cook. आप उसे डांट क्यों रही हैं मालकिन? वह बोली। He has been as good as gold the whole day, bless him. यह तो सारा दिन इतना नेक भला बना रहा है जैसे कोई खरा सोना हो। He has been sitting here quite still on his haunches. Haunches means the back end of an animal. Haunches. He has been sitting here quite still on his haunches, as meek, as gentle as an angel, means messenger, looking the whole time towards the gate for you to come back. What are you scolding him for, missus? आप उसे डांट क्यों रही हैं मालकिन? said the cook. उस रसोइये ने कहा, old cook ने कहा। He has been as good as gold the whole day, bless him. यह तो सारा दिन इतना नेक भला बना रहा, जेंटल बना रहा जैसे खरा सोना हो। उसे आशीष दो। Bless him. He has been sitting here quite still on his haunches. वह तो यहीं पर बिल्कुल निश्चल बैठा रहा, इतना नेक जैसे कोई मैसेंजर हो, कोई एंजल हो, देवदूत हो। Looking the whole time towards the gate, और वह सारा समय गेट की ओर देखता रहा। For you to come back, आपके लौटने की राह देखता रहा। He has been sitting here quite still on his haunches, as meek as an angel, as gentle as a messenger, looking the whole time towards the gate for you to come back. वह इतना नेक जैसे कोई देवदूत हो, वह सारा समय गेट की ओर
आपके लौटने की राह देखता रहा। प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना स्थिति को सही तरह से असेस किए कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। नो डिसीजन शुड बी मेड विदाउट असेसिंग द सिचुएशन। जैसा कि आपने कहानी में देखा कि शाम को घर वापस आने के बाद लेडी गुस्से में बेयर को देखते ही उसे फिर से डांटने लगी और उसने बेयर को 2 दिन तक चेन से बांध कर रखने का निर्णय ले लिया। यह निर्णय उन्होंने जल्दी में लिया जो सही नहीं था। फॉरेस्ट में जो बेयर उन्होंने देखा वो कोई और बेयर था और लेडी ने उसे अपना पेट बेयर समझने की गलती की। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें स्थिति का सही तरह से अवलोकन करना चाहिए, उसे सही तरह से असेस करना चाहिए। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। Students, that's all. Thank you for watching this video.